ओके मैम, स्टार्ट कर दीजिए, आप लाइव है। ठीक है. Good morning, students. Today we will start with a new chapter, which is Introduction to LLP, that is Limited Liability Partnership 2008. अभी तक हमने 3 यूनिट्स कवर कर लिए हैं. ठीक है. This is our syllabus which we have discussed. Unit 1 complete है. Unit 2 special contracts, where we have studied about contract of indemnity, contract of guarantee, contract of bailment, contract of pledge, contract of agency. These all we have done. Then we have already covered Unit 3, the Sales of Goods Act. उसमें सारे जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने सब कवर कर लिया है. इसके बाद आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, which is the Limited Liability Partnership Act 2008, in which we will study about what is basically LLP. ठीक है. ये एक कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, इसमें और कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये LLP कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कैसे इसके चेंज कर सकते हैं इसके नेम को, विसिल ब्लोइंग इन LLP कैसे हो सकता है, टैक्सेशन, कन्वर्जन, partners and their relations, all these we will cover in this particular unit. ठीक है. So let's start with the unit. This is introduction to LLP. Okay. Basically, what is LLP? LLP's full form is Limited Liability Partnership 2008. ठीक है. ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, so that जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, उसके जो डीमेरिट्स थे, उसका मेरिट्स को कम करने के लिए और जो कंपनी के जो एडवांटेजेस है उसको लेने के लिए, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 एंड 1956, उस एक्ट के जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और पार्टनरशिप के जो पॉजिटिव साइड है, उसके बीच का एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, which is termed as Limited Liability Partnership, which is governed under the Act, LLP Act 2008. ठीक है. We all know that there are different types of forms of organization, starting from sole proprietorship, Hindu undivided family, your partnership, your cooperative society, companies, and companies are again further divided into private company and public company. So these 5 forms are there, but वो जो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का जो गैप था, उस चीज को फिल करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, which is termed as LLP. ठीक है. अब इस LLP का क्या फीचर्स है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. So I think so the screen is visible to you. Yeah. So with the growth of Indian economy, the role played by its entrepreneurs as well as technical and professional manpower has been acknowledged internationally. In this background, there have been a need of new corporate form that would provide an alternative to traditional partnership with unlimited personal liability on one hand and statute-based governance structure of limited liability. पार्टनरशिप की क्या प्रॉब्लम थी? पार्टनरशिप में था अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी एंड इन कंपनी देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है. और कंपनी के बहुत सारे डिफरेंट नेगेटिव्स भी थे. उन नेगेटिव्स को कम करने के लिए और पार्टनरशिप की अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी को शॉर्टन करके एक लिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, व्हिच इज टर्म्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? This LLP Act is to enable entrepreneurs, professional like CA, CS, CMS, जो consultancies provide करते हैं, lawyers, advocates, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो group of people, अगर वो एक consultancy firm start करना चाहते हैं, तो they can start with LLP. They can form a LLP, that is Limited Liability Partnership, where all the partners, or we can say designated partners, have limited liability as per their share of contribution. वो जितने contribute कर रहे हैं उतने ही उनकी liability है, उनकी unlimited liability नहीं है. ठीक है. So this is the main objective in order to enable entrepreneurs, professional and enterprises providing services of any kind
or engaged in scientific and technical disciplines to form what? To form a commercially efficient vehicles suited to their requirements. एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जिससे entrepreneurs, professionals and enterprising who are providing services to the customers to cater their needs, they can have this commercial efficient form of organization as per their requirements. Okay, owing to the flexibility in its structure and operation, the LLP would also be suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. ये किसके लिए भी अच्छा माना जाएगा? जो small entrepreneurs है वो भी एक LLP start कर सकते हैं. This was the objective. कौन-कौन beneficiaries है? मतलब कौन-कौन LLP create करेंगे तो उनको benefits मिल सकता है? Just like I said, professionals like CAs, CS, CMAs, CWAs, any person providing any kind of service, जो service render कर रही है उनको लोग they can be a good beneficiaries of LLP. Okay, then who are doing venture capital funds, ये सब small sector entrepreneurs, producers in handlooms, handicrafts, इनके कम structure में है उनके लिए ये LLP बहुत beneficial है. ठीक है. So what is the legal framework? This is governed under the Act 2008. ठीक है. अब आते हैं number of sections and schedules. In LLP there are 81 sections and 4 schedules. ठीक है. जो schedule 2, 3 and 4 है, that is related to the conversion of LLP. ठीक है. So we will discuss that later on in the next class. But what we have to study कि meaning क्या होता है LLP का. We have studied that. अब हम आते हैं उसका नेचर क्या है. ठीक है. सारे बुक्स में डिफरेंट ये जो LLPs का है बहुत डिटेल में दिया गया है, बट योर सिलेबस इज वेरी ब्रीफ. आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है वी विल कवर ओनली दैट टॉपिक्स. हम सारे एक्ट को कवर नहीं करेंगे. ऑल द 81 सेक्शंस, ऑल द 4 schedules, we will not cover that. We will only cover the topics which are relevant as per your syllabus. ठीक है. तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है. देन वी विल कम टू द नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 and 4. ओके, वी विल गो अ लिटिल फास्टर. मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वी हैव रिमेनिंग 3 क्लासेस जिसमें मुझे ये वाला एक्ट आपको कंप्लीट करवाना है और साथ में मुझे IT एक्ट भी कंप्लीट करवाना है. सो दैट इज व्हाई आई विल बी अ बिट फास्टर. जस्ट ट्राई टू कैच अप दैट. ओके. So as for now, what we have done, we have done the meaning of LLP, and it has been written that LLP does not find any place in वो जो definition है ऐसा कोई proper definition नहीं है, but section 2 subsection 1 of subsection 9 defines a LLP as an incorporated partnership formed and registered under the Act of LLP 2008. एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड हो रही है किसके अंडर द LLP एक्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ठीक है. अब आते हैं नेचर पर. नेचर इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ LLP 2008 एक्ट. ठीक है. ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस particular act, this only one act will catch 20 marks. ठीक है. 18 to 20 marks सिर्फ एक particular ये यूनिट, ये particular एक एक्ट पढ़ने से ही आप सिक्योर कर सकते हैं. So that is why you have to do this LLP act in the exam और आपको इसको पढ़ना ही है. ठीक है. So section 3 subsection 1 of LLP Act 2008 क्या कहती है? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है. ठीक है. बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर. जो LLP है उसकी आइडेंटिटी और उसके पार्टनर्स की आइडेंटिटी सेपरेटेड है, जस्ट लाइक इन अ कंपनी. कंपनी में भी कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है, उनके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है. यहाँ पर हम मेंबर्स नहीं बोलेंगे जो कि LLP में होते हैं, हम उनको पार्टनर्स ही बोलेंगे, लेकिन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द LLP. सो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेटेड एट अ लीगल एंटिटी. ठीक है. लीगल एंटिटी वो एंटिटी जिस पर केस स्यू भी किया जा सकता है, जो कि दूसरों को स्यू भी कर सकते हैं, उसकी एक लीगल एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है. ठीक है.
and that is separate from its partners. Okay, next is perpetual succession. Perpetual succession, you know that कि डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, लेकिन ये एलएलपी चलती रहेगी. जैसे कंपनी में भी होता है, द पार्टनर्स में कम और गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर. ठीक है, दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन. सिमिलरली इन एलएलपी आल्सो इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन. जो पार्टनर्स है वो चले जाए, मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए, रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवाला निकल जाए उनका, लेकिन उससे एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो एक बॉडी एंटिटी है, कॉर्पोरेट बॉडी स्ट्रक्चर है, एक लीगल एंटिटी है उसका. ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. एक जब हम एलएलपी क्रिएट करते हैं, देन देयर इज अ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कि ये आपकी ड्यूटीज है, ये आपके राइट्स है. सो दिस इज गवर्न अंडर दिस एलएलपी अग्रीमेंट. ठीक है, next is separate legal entity, which I have already discussed, that LLP will be separate legal entity and will be liable to the full extent of its assets. The creditors of LLP shall be the creditors of LLP alone, not of the partners. उसकी एक separate legal identity है, separate legal entity है वो. That is why he is differ from the partners. अगर creditors है LLP के, तो वो सिर्फ एलएलपी के क्रेडिटर्स है, वो पार्टनर्स के क्रेडिटर्स नहीं है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में होता था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से पार्टनर्स के जो क्रेडिटर्स है फर्म के, वो पार्टनर्स के भी क्रेडिटर होते थे इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट नॉट इन एलएलपी. ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी. देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब जैसे मैं और आप एक पार्टनर्स है इन दिस एलएलपी एक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस एलएलपी एक्ट हमने एक लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट किया, जिसमें मैं, आप और एक और पर्सन, तीनों पर्सन हम पार्टनर्स है. ओके, अब आपने कुछ पर्सनली आपने कुछ गलत किया, ठीक है, आपने कुछ अनलॉफुल किया, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ. ठीक है, आई विल बी नॉट लायबल, आई विल नॉट, the court, the law will not held me liable, क्योंकि गलत आपने किया है. So every partners have their अपना अलग अलग एजेंसी है. There is no mutual agency. ठीक है, that is said that all the partners will be the agent of LLP only. No one partner will bind the other partner by his acts. कोई दूसरा पार्टनर अपने करतूतों के वजह से दूसरों को बाइंड नहीं कर सकता है. So that is no mutual agency between the partners. That's clear? Okay. नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस. ऑब्वियसली आपको एक लॉफुल बिजनेस करना है जो कि कोर्ट के अकॉर्डिंग लॉफुल है, जो कि ऐसा नहीं है जो कि अनलॉफुल है. दैट इज कम्स अंडर द लॉफुल बिजनेस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of 1 of subsection E of the act, which act? It is LLP Act 2008. The term business includes any trade, any profession or service and occupation. That's clear? Okay. Next is any change in partners of limited liability partnership shall not affect the existence, rights or liabilities of LLP. क्योंकि LLP जो है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है, उनकी एक सेपरेट एंटिटी है. दैट इज व्हाई अगर पार्टनर्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके वजह से LLP पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, दैट क्लियर? अगर हम पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करें, तो पार्टनरशिप में अगर एक भी दो पार्टनर से, सपोज एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप डीड चेंज करके ही उस पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ा सकते थे. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं पार्टनर्स, डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, फिर भी दिस एलएलपी विल बी कंटिन्यूड. ठीक है, पार्टनर्स का कोई इफेक्ट एलएलपी पर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. दिस इज अंडर सेक्शन 4 ऑफ LLP एक्ट. ये आप लिख सकते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ है. यू कैन राइट दिस. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अंडर सेक्शन 4 ऑफ LLP एक्ट, वेयर इट इज सेड दैट जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है, जो भी प्रोविजंस है, दिस इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए अपना एक एक्ट है, दैट इज LLP एक्ट 2008, राइट? सो
That is why anything of the provisions or anything of Partnership Act 1932 will not apply to LLP 2008. Clear है? This is about the nature of LLP. Okay. आते हैं हम उसके फीचर्स पर. ठीक है. फीचर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जो फीचर्स हमने डिस्कस नहीं किया वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा. बॉडी कॉर्पोरेट वी हैव डिस्कस्ड. सेपरेट लीगल एंटिटी वी हैव डिस्कस्ड. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. यस, जस्ट लाइक अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वैसे ही LLP भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इज क्लॉथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. जैसे एक इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, जैसे ही कैन sue और he can be sued, similarly an LLP is an artificial person with same rights of an individual, like he can be sued and he can be sued by another firm or another person or another individuals and can be sued to anyone else. ठीक है. LLP क्या है? Obviously invisible, intangible, immortal है. Immortal क्यों? क्योंकि ये dissolve नहीं हो सकता है. डिसॉल्व सिर्फ हो सकता है लॉ के वजह से. बाकी पार्टनर्स में अगर चेंजेस आती है तो फिर डिसॉल्व नहीं हो सकता है. ठीक है. सो इट इज अबाउट द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. परपेचुअल सक्सेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, रिटायर्ड हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, स्टिल इट विल नॉट अफेक्ट द LLP because it has perpetual succession under section 3 of subsection 2. ठीक है. कॉमन सील. ठीक है. कॉमन सील जो है एक क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, सो इट शुड हैव अ कॉमन सील जस्ट लाइक अ कंपनी. जैसे कंपनी के कॉमन सील होता है, यहाँ पर भी कॉमन सील है, बट यहाँ पर एक रेगुलेशन है, एक रूल है, ठीक है, विच यू हैव टू मेंशन व्हाइल राइटिंग दिस आंसर कि it shall be affixed. जो कॉमन सील है वो in the presence of at least 2 designated partners of LLP के सामने ही आप कॉमन सील लगा सकते हैं. किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी अग्रीमेंट में, किसी भी आपका टेंडर हो या फिर आपका किसी भी आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो जहां पर आपके LLP का सिग्नेचर चाहिए, दैट इज कॉमन सील चाहिए, वहां पर एटलीस्ट 2 designated partners of LLP should be in present there when you are affixing that common seal. ठीक है. This is very important. Okay. The common seal of LLP shall have name engraved along with the place and date of the incorporation. आपकी जो common seal है उसमें क्या लिखा होगा? For example, XYZ LLP. Okay. Then it will be place, कौन से place? For example, New Delhi. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किस दिन पर वो रजिस्टर्ड हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो वाला दिन. फॉर एग्जांपल 16 जुलाई 2008 2010. ओके. ये आपका एक कॉमन सील क्रिएट होता है और ये कॉमन सील कब आप लगा सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ LLP. ठीक है. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? वी विल सी ग्रेजुअली. ओके. सो हम क्या कह सकते हैं? कॉमन सील क्या है? एक सिंबल है ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. ओके. Liability, we have discussed that every partners have their limited liability and the liability according to the contribution he or she had made towards the LLP. ठीक है. Every partner of a LLP is for the purpose of business of LLP, the agent of the LLP, but not of the partners. The liability of partners will be limited to their agreed contribution in the LLP. जिन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से ही लिमिटेड होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल 2:3 रेशियो में अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है बिटवीन द 2 पार्टनर्स, देन 2 पार्टनर्स ऑफ LLP, देन उनका जो लायबिलिटी है दैट इज आल्सो इन द रेशियो ऑफ 2:3. ठीक है. दैट्स क्लियर. So such contribution may be tangible or intangible nature or both. जो contribution की बात कर रही हूँ ये tangible भी हो सकता है in terms of money और intangible भी हो सकता है in mode of services. Okay. Next is, however, the liabilities of LLP and partners who are found to have acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be limited to all or any of the debts of other liabilities of the LLP. ठीक है.
जो LLP की लायबिलिटीज है वो LLP के लायबिलिटीज तक ही सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। The partners in LLP are entitled to manage the business of LLP. जो partners है, they are entitled to manage the business of LLP, but only the designated partners are responsible for legal compliances. यहाँ पर LLP में मैं ये बता दूँ आपको, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी मैं बता देती हूँ कि LLP में पार्टनर्स भी होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो कि बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनके पास ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द लीगल कॉम्प्लायंसेस, ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ये जो बिजनेस को मैनेज करना है वो पार्टनर्स कर सकते हैं LLP के, लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, ऑल द लीगल कॉम्प्लायंसेस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। Mutual agency which we have covered, that is no mutual agency between the partners. एक पार्टनर अगर गलती करेगा उसकी सजा दूसरे पार्टनर को नहीं मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स होने चाहिए एटलीस्ट एंड 2 एटलीस्ट इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। ये समझ में आया? मिनिमम 2 नॉर्मल पार्टनर्स, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे कंपनी में मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं था, यहाँ पर भी मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। पार्टनर्स में 10 था, अप टू 10 यू हैव पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 2 नॉर्मल पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। दिस इज द minimum number and maximum number of partners in a LLP, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं, आप कोई NGO चलाने के लिए या फिर कोई नॉन इकोनॉमिक पर्पस या कोई चैरिटेबल पर्पस, इसके लिए आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है LLP अग्रीमेंट, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। LLP अग्रीमेंट। LLP अग्रीमेंट क्या है? ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि आपको बताता है कि आप एज अ पार्टनर्स आपके बीच में क्या राइट्स है, आपकी क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स द LLP, ठीक है। द LLP Act 2008 provides flexibility to partners to devise the agreement as per their choice. मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से आपके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसने दिया है? दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन बाय द LLP Act 2008, okay. But if there is no such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP Act 2008. इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या है आपके बीच में एज अ पार्टनर्स, अगर नहीं है ऐसा कोई अग्रीमेंट, तो भाई साहब अब तो हम गवर्न करवाएंगे किससे? LLP Act 2008 से, ठीक है। So this is the crux of this LLP agreement, okay. The duties and obligations are designated partners shall be provided by the law. ये हमने किसके बारे में बात किया? ये हमने बात किया पार्टनर्स के बारे में कि पार्टनर्स जो है वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज म्यूचुअली अग्री कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू LLP अग्रीमेंट। लेकिन ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है तो LLP Act 2008 के जो प्रोविजंस होंगे वो गवर्न करेंगे। लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो कोई ऐसा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को अपने आपस में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जो ड्यूटीज है, उनकी ऑब्लिगेशंस है, उनकी राइट्स है, दोस आर गिवन बाय द LLP Act 2008। यही लिखा गया है, द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शैल बी प्रोवाइडेड इन द लॉ, ओके। दिस इज अबाउट LLP agreement. नेक्स्ट इज एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। अब हर एक LLP को एक एनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है, जहां पर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स शुड बी रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। A statement of accounts and solvency shall be filled by every LLP with registrar every year. हर एक लोकेलिटी के, हर एक स्टेट के एक रजिस्ट्रार होते हैं, तो LLP के जो रजिस्ट्रार है इन दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर योर बिजनेस इज बीइंग कमर्सिंग, या फिर आपका जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है LLP का, जहां पर आप
जो लोकेशन है वहां के रजिस्ट्रार को आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी शॉल बी फाइल्ड बाय एवरी एलएलपी एवरी ईयर। ठीक है, दिस इज द रूल अकॉर्डिंग टू द एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। ठीक है, Rule 24 of LLP Rules 2009 provides that every LLP is required to get its accounts audited by chartered accountant whose annual turnover exceeds 40 lakhs or contribution exceeds 25 lakhs. आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल 24 ऑफ LLP Rules 2009। किनको ऑडिट करवाना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा ऐसे LLP जिनके एनुअल टर्नओवर है 40 लाख से ज्यादा या फिर उनकी कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से ज्यादा। ठीक है, द टर्नओवर लिमिट ऑफ 40 lakhs हैज बीन रेज्ड टू 60 lakhs बाय फाइनेंस एक्ट 2010। अभी वो 40 लाख का लिमिट है वो 60 लाख के लिमिट में पहुंच गया है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू रूल 24 ऑफ LLP रूल्स, अब एनुअल टर्नओवर अगर आपकी 60 लाख से ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन आपकी 25 लाख से ज्यादा है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा एक सीए से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। Central government shall have powers to investigate the affairs of LLP by appointment of competent inspector for the purpose. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपकी LLP में दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो उनके पास वो राइट है, उनके पास वो पावर है कि वो एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके छानबीन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके LLP पर भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। Any compromise or arrangement including merger and amalgamations of LLP shall be in accordance with the provisions of LLP Act 2008. अगर आपको कोई merger करना है, कोई amalgamation करना है of your LPP with another LPP, तो वो सारे जो rules है, वो सारे जो provisions है, वो किसके according होंगे? LLP Act 2008 के according। ठीक है, नेक्स्ट है conversion of LLP। LLP को हम convert कर सकते हैं। ठीक है, a firm, private company or an unlisted public company would be allowed to be converted into LLP in accordance with the provision of LLP Act 2008. एक firm को हम LLP Act में हम convert कर सकते हैं according to Schedule 2 of LLP Act. Private company को हम LLP में convert कर सकते हैं according to Schedule 3 of LLP Act. And unlisted public company को भी हम convert कर सकते हैं into LLP according to Schedule 4 of LLP Act. ठीक है, इन सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके क्या प्रोसीजर है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज इन थर्सडेज क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनकी बेसिक चीजें क्या है। बस आपको ये समझना है कि एक फर्म, एक प्राइवेट कंपनी और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है LLP में। कैसे होगी, क्या होगा, वो हम आगे सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप ऑफ LLP। ये भी एक अपने में एक बड़ा टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें ये बोला क्या है कि LLP इधर वॉलंटरली वाइंड अप हो सकती है या फिर कोई ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, वो ट्रिब्यूनल भी वाइंड अप करवा सकती है। ठीक है, द वाइंडिंग अप ऑफ LLP may be either voluntary or by the tribunal to be established under the Companies Act 1956. Till the tribunal is established, the power in this regard has been given to the High Court. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि LLP में कुछ प्रोविजंस डालने हैं ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के, तो वो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो किसी भी LLP को कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस को लगा सकती है बाय एनी नोटिफिकेशन। ओके, द LLP एक्ट 2008 would confer powers on the central government to apply provisions of Companies Act 1956 by notification with such changes or modifications as deemed necessary. मैंने सेक्शन 4 of LLP Act 2008 में क्या कहा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी प्रोविजंस LLP पे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आती है बात हमारी कंपनीज एक्ट 1956 की। कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस लग सकते हैं LLP पर। कौन लगा सकता है, किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कंपनीज एक्ट 1956 और यू कैन से कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को
वो LLP पे लगा सकता है। कब लगा सकता है? अगर उनको लगा कि इट इज नेसेसरी, तब वो प्रोविजंस LLP पे लगवा सकते हैं बाय नोटिफिकेशन विद सच चेंजेस और मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज टैक्स। ऑब्वियसली टैक्सेशन आपको इनकम टैक्स आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 शैल अप्लाई इन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू द टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजंस, वो सारे इश्यूज रिलेटिंग टू टैक्सेशन विल बी ऑफ एलएलपी। ठीक है, नेक्स्ट इज ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Every form or application of documents required to be filled or delivered under the Act or rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website www.mca.gov.in and authenticated by a partner or designated partner of LLP by the use of electronic and digital signature। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आप वो फाइल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस वेबसाइट में? MCA के वेबसाइट में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में। और इसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा? जब आप वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं तब इधर पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP को अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, हम नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि मैंने बता दिया है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू LLPs, राइट? अब नेक्स्ट है फॉरेन LLPs। सेक्शन 2 subsection 1 of subsection M of the Act defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India which established as place of business within India। मतलब सीधा सीधा ये समझिए, कोई एक ऐसा लीगल लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो कि हमारे इंडिया से बाहर किसी कंट्री में फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इंडिया है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन LLPs। फिर से बोल रही हूँ मैं, एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर, एक ऐसा LLP जो कि बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इंडिया है। ठीक है, सो दैट इज फॉरेन LLP अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ M। ठीक है, एक और पॉइंट ये है कि foreign LLP can also be a partner। ठीक है, foreign LLP भी एक पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, LLP and traditional partnership firm, this is already I have discussed। जब मैं ये नेचर फीचर्स पढ़ा रही थी उसके साथ साथ ही मैं आपको बताती जा रही थी। वेरी सिंपल है, साथ ही मैं बता रही थी कि किसकी लीगल एंटिटी है, किसकी नहीं है, कौन पार्टनरशिप को कौन क्रिएट करता है। इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बट जो हमारा LLP है, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द LLP एक्ट 2008। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में नहीं होती है, बट देयर इज परपेचुअल सक्सेशन इन LLP। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 और 10 होते थे, यहाँ पर मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप एक्ट में होता था, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कोई प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अभी फॉर एग्जांपल 2022 चल रहा है। ठीक है, सो वी आर इन द असेसमेंट ईयर ऑफ करंट ईयर, नॉट असेसमेंट, करंट ईयर कौन सा हो गया हमारा? 22-23। सो अगर मुझे रेजिडेंट पता करना है, सो आई विल चेक 21-22 में एटलीस्ट 182 डेज कोई पर्सन इंडिया में रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया। सो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, 2 नॉर्मल पार्टनर्स होने चाहिए LLP में। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, कॉमन सील नहीं होता है पार्टनरशिप में, इसमें पार्टनरशिप LLP में कॉमन सील होता है। सो दीज ऑल थिंग्स ऑलरेडी आई हैव कवर्ड। ठीक है, बाकी पॉइंट हम कवर करते रहेंगे। फाइंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, मोड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ये आप एक बार रीड करेंगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया। These things are in your syllabus, इसलिए that is why these are very important। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
सिमिलरली आपके एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी दैट इज योर नॉर्मल कंपनी, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी, सो यू कैन डू दैट। ओके, एलएलसी इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कंपनी को ही एलएलसी कहा गया है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर पूछा गया है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, तो आपको यही लिखना है, एलएलसी इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का ऑब्वियसली यू नो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है एंड दिस गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 1956, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो सेम थिंग जो मैं आपको नेचर और फीचर्स पढ़ा रही थी, उसमें मैं जब डिस्टिंक्शन करवा रही थी तो उसमें यू हैव डन दैट, ठीक है। कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं इन प्राइवेट कंपनी, बट इन पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर्स लगते हैं। वैसे डायरेक्टर्स का कोई प्रोविजन नहीं होता है इन एलएलपी, देयर इज ओनली प्रोविजन ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पार्टनर्स 2 मिनिमम पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में 2, उसमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, ठीक है। जस्ट रीड आउट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। और बाकी हम आगे कर रहे हैं तो आगे के पॉइंट से भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नॉट रिपीटिंग, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पुट किए हैं मैंने, यू कैन गो थ्रू दैट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब हमने देख लिया एलएलपी क्या होता है, वो कैसे डिफरेंट है पार्टनरशिप से, वो कैसे डिफरेंट है कंपनी से, उसकी क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या नेचर है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आ सकता है। वो एलएलपी जो है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हाउ हम एज अ पर्सन हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस पॉइंट, ठीक है। बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेक एनी डाउट्स इफ यू हैव टिल नाउ, ठीक है। मैंने पीपीटीज अपलोड कर ली है, आप एक बार गूगल ड्राइव चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मॉर्निंग एवरीवन, मैंने अनपेड सेलर का चैप्टर एंड वारंटी एंड कंडीशंस अगर सेंड नहीं किया है तो आई विल चेक वंस, आई गेस आई हैव सेंड दैट। कभी कभार कुछ स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, ठीक है, आई विल चेक दैट। और अगर मैंने सेंड नहीं किया मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। अनपेड सेलर, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगी, ठीक है। फाइन, रोशनी, एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग। Which chapter 3 PDF notes? Just check Anisha in the Google Drive. First check and then tell. Okay. Your offline class will be started soon, Sheetal. Then you can do that classes. अगर आपके online classes miss हो गए तो offline classes भी आप जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। So आपकी syllabus वहाँ भी cover हो जाएगा once more time. आपने अगर ऑनलाइन लिया है तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन टेक द बोथ द अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर गिवन बाय द एसवेल, राइट। ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्ट सून, इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जरूर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है इन एलएलपी, ठीक है, जो उसके उतने फॉर एग्जांपल जुलाई में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जुलाई तक उसका जो प्रॉफिट बनता है या फिर उसकी जो सैलरी बनती है, ठीक है, वो उसके एजेंट को दिया जाता है या उसके नॉमिनी को दिया जाता है, ठीक है। नोट्स इन द गूगल ड्राइव, डोंट नीड टू राइट द सेम थिंग सेवरल टाइम्स। जाकी, एक बार फिर आप मेरे रिकॉर्डिंग्स को सुन लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। कॉमन सेल कुछ नहीं है, एक ऐसा स्टैम्प है, ठीक है, इसका स्टैम्प है, एलएलपी का स्टैम्प है, जिसमें लिखा होता है कि एलएलपी का क्या नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल XYZ एलएलपी, ठीक है, उसके साथ वो किस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ है और वो किस जगह पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो लिखा होगा, ठीक है। दैट इज अ स्टैम्प, सिंपली यू हैव टू नो दैट इट इज अ स्टैम्प। कॉमन सेल एक स्टैम्प होता है, ठीक है। Yes, features you have to explain. अगर वो 8-9 मार्क्स का आया है तो you have to explain that. Okay.
So 3 to 4 लाइंस में लिखने से नहीं चलेगा, you have to explain it very well. Okay? ईयर जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ईयर लेते हैं वही फाइनेंशियल ईयर होता है एलएलपी का भी. Yes, LLC is same as company entity. Yes, I have already sent in the Google Drive caution. Please someone send me the link of the Google Drive, ठीक है, ताकि मैं फिर से पब्लिश कर दूं. जिनके पास वो एक्सेस में नहीं है वो उनके पास मिल जाए, ठीक है. No, exam will be not in open book examination anymore. आपके एग्जाम्स रिटन फॉर्म में ही होंगे, नॉर्मल जैसे एग्जाम्स होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम्स. ओके. Yes, it is regulated by 2013, but previously 1956 में होता था तो वही लिखा गया है. So don't worry about that. You can mold that according to 2013. Regulations almost same ही है, ठीक है रोहित? Same है. It's same. So now let's move to the next topic. This time 15 minutes में मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है. So yeah, here we come to the incorporation of LLP, that is limited liability partnership. Okay, we have discussed क्या है वो. एक body corporate and legal separate entity है. From its partners एक status है, एक legal status है. So these all we have discussed. ठीक है. अब what are the benefits of incorporating a LLP? आप जब एक LLP को incorporate करना चाहेंगे तब आपके पास minimum 2 partners होने चाहिए. पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट. जैसे एक फॉरेन एलएलपी भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए. साथ में आपके पास 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनमें से एक एटलीस्ट रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के. इंडिया के रेसिडेंट कौन होंगे? जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में रही है, ठीक है. नेक्स्ट प्रीरिक्विजिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी है क्या? एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. आपके पास, आपके पार्टनर्स के पास, जो आपके जो मिनिमम 2 पार्टनर्स है, जो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, उनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या, एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपके पास, आपके दिमाग में आपके जो एलएलपी होगा उसका नाम आपको सोच कर रखना पड़ेगा, ठीक है. उसके साथ आपके पास एक एलएलपी अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स. आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए. सो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ एलएलपी, ठीक है. वन बाय वन हम इनको कवर करते हैं क्या क्या है. सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी. अगर आपको एक न्यू एलएलपी क्रिएट करना है तो इसके प्रोसीड्यूर्स क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. आपको 2 मिनिमम पार्टनर्स, 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाने हैं. 2 डेजिग्नेटेड में से एक एटलीस्ट आपके रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया, ठीक है. उसके बाद आपके पास डिपिन होने चाहिए, डिपिन एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए. आपके पास जो आपके कंपनी का नाम है उसको किसी दूसरे नॉट कंपनी सॉरी, आपके जो एलएलपी का नाम है जो आपने डिसाइड किया वो किसी दूसरे एलएलपी के साथ क्लैश नहीं करने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, आपका कोई नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से वो प्रोहिबिटेड हो, ठीक है, या फिर जिससे मिस रिप्रेजेंटेशन हो या फिर किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऐसे नाम नहीं होना चाहिए. और सेकेंडली वो नाम अवेलेबल होना चाहिए. ये आपका नेक्स्ट स्टेप है. फोर्थ स्टेप है एक एलएलपी अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना है. एंड फिफ्थ स्टेप है यू हैव टू फाइल इलेक्ट्रॉनिक द डॉक्यूमेंट्स, सम डॉक्यूमेंट्स. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन. वो डॉक्यूमेंट्स को आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज या रजिस्टर ऑफ एलएलपी को आपको फाइल करना है. एंड देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस 5 स्टेप्स द ROC will issue a certificate of incorporation, ठीक है. Now first you have to decide the partners and designated partners. Partners कौन होते हैं? Designated partners I have already discussed. अब a person or nominees of body corporate intending to be appointed as designated partners of LLP should hold a designated partner identification number, that is DPIN, allotted by Ministry of Corporate Affairs MCA. अब आप जो सोच रहे हैं कि जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते. पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैव टू बी इंडिविजुअल एंड अमंग देम वन हैव टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, राइट. सो
ये जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है इनके पास DPIN होना चाहिए। DPIN व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कौन अलॉट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलॉट करता है। ठीक है, अब आपके पास DPIN आ गया है, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आ गया है। अब आप स्टेप कर सकते हैं। DPIN क्या होता है? छोटे में आप यहाँ दिया गया है कि एक 8 डिजिट नंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा आपको अलॉट किया जाता है ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आप कौन है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्या कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है ही इज लीगली कंप्लाइंट। अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसको लीगली कंप्लाइंस किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनिमम फी देकर आप वो DPIN अलॉट करवा सकते हैं, दैट इज 100 रुपीज एज प्रेस्क्राइब्ड फीस। द फीस कैन बी पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड दिस इज नॉट सो रेलेवेंट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैन बी ऑफ क्लास 2 और क्लास 3 DSG। ये क्लास 2 क्लास 3 नन ऑफ दैट रेलेवेंट और इम्पोर्टेंस। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि देयर आर 3 क्लासेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो क्लास 2 है दैट इज फॉर e-filing, क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट है वो फॉर e-tender। ठीक है, सो नॉट गोइंग इन डिटेल, बट आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 3। ठीक है, क्लास 1 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होने से नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज दैट। देन आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, after the partners and designated partners are decided and DPIN and DSCs are obtained, the next step is to select the name of the proposed LLP because the selection of name is crucial for the image of the entrepreneur. ठीक है, और enterprise। आप जो नाम होगा वो आपके मतलब LLP का जो नाम होगा वो आपके बिजनेस से रिलेवेंट होना चाहिए। जो आपका बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो एक्टिविटी आप इंटेंड कर रहे हैं कि आप वो ही करेंगे, जो आपके प्रोमोटर्स है LLP के, जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उससे सिमिलर होना चाहिए आपका नेम, राइट। देन आपके जो LLP ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है कि नाम कैसा होना चाहिए वो भी आपको देखना है। ठीक है, उनको भी आपको फॉलो करना है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू एंड देन you have to check the availability of name. The application can be made in form E-Form 1 of Rule 18, subsection 5 of LLP Rules 2009 for the reservation of the desired name. अब reservation of desired name मतलब yes, you can reserve the name. जब आप वो डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा मुझे वो सब करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस नाम को रिजर्व कर सकते हैं। कहीं जब तक आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं तब तक ऐसा तो नहीं आपका नाम कोई और लेकर चला गया। ठीक है, आपके LLP का नाम किसी और LLP को अलॉट हो गया। सो दैट इज व्हाई यू कैन रिजर्व योर नेम। कितने महीने के लिए? सिर्फ 3 महीने तक आप रिजर्व कर सकते हैं। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो किसी और के पास चला जाएगा या फिर वो नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो 3 महीने तक आप नाम को रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, 6 चॉइसेस दे सकते हैं नाम के। जब आप E-Form 1 में आप अपने नाम LLP का नाम दे रहे हैं तब आप अप टू 6 चॉइसेस कैन बी इंडिकेटेड। ठीक है, इसके साथ आप देने पड़ेंगे। ठीक है, व्हिच आई हैव डिस्कस्ड कि जो जिस फॉर्म के साथ जो फीस है वो फीस भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो थिंग अब है LLP अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना। सो दिस LLP अग्रीमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेबस। आपके सिलेबस में अलग से ये टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज LLP अग्रीमेंट, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इसकी रेलेवेंस क्या है, ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस। LLP अग्रीमेंट क्या है? It means any written agreement between the partners of LLP or between the limited liability partnership and its partners which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that the LLP. ठीक है, already I have explained LLP agreement क्या होता है। इसमें आपके रूल्स एंड ड्यूटीज लिखा जाता है between the partners and LLP के बीच में क्या ड्यूटीज होंगे, क्या किसके क्या काम होंगे, क्या राइट्स है, वो भी रिटन अग्रीमेंट में लिखा जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए जो रूल्स गवर्न है बाय द LLP एक्ट वही चलता है। ये LLP अग्रीमेंट इज ओनली फॉर द पार्टनर्स ऑफ LLP। ठीक है,
इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं? नेम ऑफ द एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस उस कंट्रीब्यूशन में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, किसको कितना सैलरी, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, किस पार्टनर्स की कितनी राइट्स है, क्या ड्यूटीज है इन केस ऑफ एडमिशन, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, सेसेशन एंड एक्सक्लूजन, बिजनेस, क्या बिजनेस के लिए ये एलएलपी फॉर्म क्या क्या है, रूल्स क्या है गवर्निंग द एलएलपी, ये सब। ठीक है, कोई अग्रीमेंट में ऐसा कोई कंटेंट का कोई भी पार्ट अगर मेंशन नहीं किया गया है तो जो भी एलएलपी एक्ट शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज है वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, एलएलपी अग्रीमेंट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द रेलेवेंट स्टैम्प एक्ट ऑफ द स्टेट। जो भी एक्ट का स्टैम्प एक्ट के हिसाब से स्टेट का जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग कितने रुपए का स्टैम्प होना चाहिए, कैसा स्टैम्प होना चाहिए, उस हिसाब से ये एलएलपी अग्रीमेंट में ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा विद इट्स प्रेस्क्राइब्ड फीस। उसके प्रेस्क्राइब्ड फीस के साथ रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? फॉर्म ई फॉर्म 1 में है एप्लीकेशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, ई फॉर्म 2 पे है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सब्सक्राइबर स्टेटमेंट। सब्सक्राइबर स्टेटमेंट, इसमें सब्सक्राइबर जो है वो स्टेटमेंट देता है कि जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं वो सब कुछ, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, वो सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो मुझ पर पेनल्टी लगेगा। सो ये सब्सक्राइबर की स्टेटमेंट होता है अलॉन्ग विद इट्स डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, देन कम्स ई फॉर्म 3 जहां पर एलएलपी अग्रीमेंट के डिटेल्स होते हैं और कोई भी चेंजेस उसमें हो, उसके कोई भी चेंजेस लाना हो या फिर कोई भी चेंजेस आया हो, वो सब कुछ ई फॉर्म 3 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ई फॉर्म 4 जहां पर पार्टनर्स के डिटेल्स दिए जाते हैं, उनके नेम, उनके एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब डिटेल्स पार्टनर्स के दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज ई फॉर्म 7 जहां पर DPIN that is designated partner identification number वो इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी दिया जाता है साथ में, रजिस्टर्ड ऑफिस का में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, दिस इज नॉट सो, एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट। ई फॉर्म 3 भी मैंने डिस्कस कर दिया है क्या क्या एलएलपी अग्रीमेंट में होगा। ठीक है, it is not mandatory to file LLP agreement at the time of incorporation and same can be filed within 30 days of incorporation or within 30 days of subsequent changes। जब आपका incorporation हो रहा है तभी आपकी LLP agreement को फाइल करना कंपलसरी नहीं है। आप within 30 days of incorporation के बीच आप LLP agreement को फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका LLP अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि व्हाट इज LLP अग्रीमेंट, व्हाट आर इट्स डिटेल्स, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स। सो आपको पूरे चैप्टर में LLP अग्रीमेंट के बारे में जहां जहां जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपको याद करके उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके, सो अभी LLP अग्रीमेंट में एक और चीज हमने क्या पढ़ा कि जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तभी आपको LLP अग्रीमेंट फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है कब? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर आप कोई चेंजेस करवा रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना, क्या फाइल करना? LLP अग्रीमेंट फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, however in order to avoid any dispute between the partners relating to the terms and conditions of the agreement after the formation of LLP, it must be drafted and executed before the incorporation of LLP। वैसे LLP अग्रीमेंट LLP एक्ट में इन्होंने सजेशन दिया है कि कोई डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा इनकॉर्पोरेशन से पहले ही LLP अग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका बना नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपका इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही LLP अग्रीमेंट होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। आप 30 दिन के बाद भी आफ्टर द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन, विद इन 30 दिन में आप LLP अग्रीमेंट को फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, देने हैं वो मैंने बताया था, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का। ठीक है,
अब आता है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरओसी, दैट इज द 6th स्टेप। इतना कुछ करने के बाद अब हमारा फाइनल एंड कंक्लूडिंग स्टेप आता है, जहां पर रजिस्ट्रार है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इश्यू करवाते हैं। ठीक है, आपके सारे जो फॉर्मेलिटीज है उसको सेटिस्फाई होने के बाद, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके फीस थे, वो सब आप कंप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रार विल इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म 16 विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिन में, 14 दिन में, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 2। जब जैसे आप फॉर्म 2 को फाइल करेंगे उसके 14 दिन के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा बाय आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार। जब वो देखेंगे कि आपकी जो फॉर्मेलिटीज है, आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपके जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है, वो सब आपने कंपाइल किया है, ये सैटिस्फाइड, देन within 14 days from the issue filing of form 2 he will issue the certificate of incorporation। ठीक है, इस जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये कौन साइन करता है, ये रजिस्ट्रार साइन करते हैं और इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। This is about the incorporation. Incorporation documents section 11 provides that a statement is required to be filed in the prescribed form along with the incorporation document. This statement shall be made by an advocate, CA, CS, CMA engaged in a formation of LLP as to legal compliance regarding incorporation. एक incorporation document according to section 11 में बताया गया है कि एक statement आपको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, जो इस एलएलपी को फॉर्म करवा रहा है, ऐसे कोई एक एडवोकेट या फिर कोई सीए या फिर कोई सीएस या फिर कोई सीएमए, ऐसे कोई पर्सन को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, ये फॉल्स नहीं है एज पर माय बिलीफ, ठीक है, एज पर माय नॉलेज। अगर वो गलत हुआ, ठीक है, तो उसको पेनल्टी दिया जाएगा। पेनल्टी कितना, which shall not be less than 10,000 and may extend to 5 lakh rupees। अगर जो स्टेटमेंट दिया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 बाय सीए, सीएमए, सीएस या लॉयर, अगर वो स्टेटमेंट गलत होता है तो एक फाइन लग सकता है। कितना, 10,000 से 5 लाख के अंदर एक फाइन लगेगा और 2 साल का जेल भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन। Registered office and LLP and change their name। ठीक है, this we will cover in the next class and the provisions relating to the name of LLP and changes their name। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स बचे हैं इस टॉपिक में, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इट्स ऑलरेडी 11:30, so if you have any doubts you can post it here and then we will wind up। I think so, Kaushal, I have not uploaded the unpaid seller, or I have uploaded sales of goods act, I guess you can see that। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपको सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, शायद मैं पीडीएफ्स डालना शायद कुछ भूल गई हूँ, मैं एक बार चेक कर लूंगी। एज फार एज माई नॉलेज आई हैव अपलोडेड एवरी पीडीएफ आफ्टर द क्लास, सो यू कैन चेक दैट। अदरवाइज अगर कोई पीडीएफ डालना रह गया है, मुझसे स्लिप ऑफ माइंड हो गया है, तो आई विल पुट दैट। ठीक है, थैंक यू अदिति। आई एम पब्लिशिंग दिस गूगल ड्राइव लिंक, यू कैन एक्सेस दैट। ओके, विजुअल मैकेनिज्म तो नहीं है ज्योति, जस्ट चेक द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस। यहाँ विजुअल कहाँ दिखा हुआ है आपको? Salient features of LLP, I have discussed that, difference between LLP partnership, LLP and company, LLP agreement क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस किया, नेचर ऑफ LLP क्या है वो भी डिस्कस किया, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये हम कल डिस्कस करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस कर लिया, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड LLP, ये सब बाकी सब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इतना हमने, ये सब बाकी हम कल नहीं, मतलब थर्सडे के क्लास में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन। अभी हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस, चेक द सिलेबस एंड देन से ओके। LLP एंड कंपनी इज नॉट सेम, तभी तो डिफरेंस बता रहे हैं हम कंपनी और LLP पे रोशनी।
जस्ट सी द रिकॉर्डिंग्स वंस अगेन आफ्टर द क्लास, तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा चीज तो मैंने यही बताया कि एलएलपी और कंपनी डिफरेंट है, ठीक है। LLC and company is same. Limited liability company and limited liability partnership. These two are different thing. ठीक है, रोशनी जस्ट गोज एक और बार, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रही हूँ और फर्स्ट टाइम आप ये एलएलपी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आफ्टर द क्लास आप क्या कीजिए, हमेशा किसी भी टीचर के लेक्चर को आपको फिर से सुनना है। आफ्टर द क्लास आप उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग सुनाई देगी उसी दिन का, ठीक है। वो रात के 12 बजे खत्म हो जाता है वो लिंक, तो विद इन 12 इन द मिडनाइट आप उस लिंक को फिर से पढ़िए, फिर से सुनिए। यू कैन बी रिवाइज, आपको समझ में आ जाएगा। जो जो पॉइंट्स नोट्स में नहीं है वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दैट इज सो सिंपल, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू ऑल दिस टॉपिक इन द थर्सडेज क्लास, और उसके बाद ही मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। ये जो पीडीएफ है उसके बाद ही मैं प्रोवाइड करूंगी। सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। वी विल मीट ऑन थर्सडे फ्रॉम 11:30 to 12:30, ठीक है। थैंक यू।